Yes, guys, please switch off your mic as of now, as we are into the process of involving people right now. So आप लोग फिर बाद में अपने अपने questions के साथ अपने mic को on कर सकते हैं. But please, I will request you all थोड़ा maintain करेंगे decorum because हमारे साथ बहुत सारे लोग join करने वाले हैं. And then please, I think you guys all are able to understand how and at what level we are going to organize this meeting. That's why. और जिनको ये चीज़ डरने का ज़रूरत नहीं है. हमारे साथ जो बाहर के भी लोग आ रहे हैं वो भी हमारे साथ हिंदी में ही इंटरेक्ट करेंगे. तो मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ इस सेशन में. और थैंक्स ऑल हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए. और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आज जो एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिनके स्पीकर्स का हमने नाम दिया था हमारे पोस्टर में एज वेल. एंड वो लोग ऑलरेडी अपने जगह पर कहीं ना कहीं इस तरीके से वेल सेटल्ड हैं और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं. और जो लोग ये सोचते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब को ख़त्म कर देगा, तो इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है. तो आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे. सो प्लीज़ बी रेडी विथ अस. Thank you so much, Arnava sir, for joining us. Thank you, madam. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, sir. I think Satyam sir is also here. Sir, can you hear us? Yes, I can hear you. Hello. Yes, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. We are very thankful for you to accept our invitation, and we are very happy to have you here. Don't worry. I think Vijesh sir, are you here with us? Vijesh sir. Madhup sir. I think Madhu sir has not joined yet. I'll just check with him. Sure. Can and also you can ping him and give him a call as well. Yes, I'll just do that. So guys, Satyam sir and Arnava sir is with us, and he will be getting introduced to you all. आप लोगों के साथ इनको introduce भी किया जाएगा, like what they are and what they are doing right now. तो प्लीज बी पेशेंट और हमारे साथ बने रहिए. एंड थैंक्स once again to all for joining us. Good evening, everyone. I would request all the panelists, Dr. Arnava sir, Satyam sir, to turn on their video so that we can be here and interact with the participant and start with the session. Rangish sir. Abhigyan, please. Okay, thank you. We have Vijesh sir also with us. Sir, we would request you to turn your video on. My video is on. Sir, now it is visible. Okay. Thank you so much. And Satyam sir also, can you please join us with the video? Yes, it should be there. Can Okay. you... No, yes, now it is visible. Good evening, everyone, and a very warm welcome to this momentous occasion, the inaugural program of our 3-month free certificate training program in Python, cloud computing, and development operations. I am Manisha Katyal from Support Foundation, and for this special event, I am honored to be part of this incredible initiative that aims to equip aspiring professionals with cutting-edge technical skills and industry knowledge. This program is the testament to our commitment to bridging the gap between academia and industry by offering hands-on learning and mentorship from the experts in the fields. So before we begin, let us take a moment to express our gratitude to our host organizations, Project Development Operations and Support Foundation, for making this initiative possible and empowering individuals with the career transforming skills.
Before starting with the event, usually in our offline event, we have a very beautiful ceremony which is very close to us in the Hindu culture, which is lighting of the lamp. Definitely, we cannot have that in the online session. But yes, as we embark on this journey of knowledge and enlightenment, let's commence today's event with the ceremonial online lighting of the lamp tradition that symbolizes wisdom, prosperity, and removal of ignorance. I would like to initiate this ceremony by sharing my screen and lightning of the lamp. Just give me 1 minute. I hope my screen is visible. With the lightning of the lamp, may this light guide us towards success, learning, and innovation. With this, I would like to request our main person who have designed this whole program, Abhigyan, to introduce about this particular training program. Once we have the introduction about the training program, we will go ahead with listening to our special guest that we have for this particular program. Abhigyan. Sure. Thank you, Manisha. So going ahead with this project DevOps के बारे में मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि जो हमारे हिंदी बेल्ट के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, either they are from BTech, BCA, BSc, IT, whatever they are doing, it doesn't matter. लेकिन जो कंप्यूटर साइंस और जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से हैं, उनके साथ सबसे बड़ा मेजर चैलेंज ये आता है कि उनको ना कभी पूरे तरीके से जो है उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। और ये हमारे साथ भी हुआ है, जब हम अपने कॉलेज में थे तो हमारे साथ भी होता था। तो हम लोग इन चीज़ों को समझते हुए सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से ये 3 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का खासियत ये है कि जब हम आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे, यानी कि 7 बजे से 8:15 बजे के बीच तक, इस बीच में हम आपको लाइव सर्टिफिकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज नॉट दैट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल हैव टू गिव योर माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपको अपना समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको टाइम देने का जरूरत होता है। तो मैं बिना किसी भी चीज को आगे वो किए हुए, क्लटर किए हुए, मैं बाकी लोगों के ऊपर जो हमारे एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। इसके बाद मैं पूरा आपको इस सॉफ्टवेयर और इस प्रोग्राम का किस तरीके से आप इसके ऊपर इस LMS जो सॉफ्टवेयर मैंने खुद से डिजाइन किया है उसको आप यूज करके आप अपने पर्टिकुलर 3 महीने बाद एक सर्टिफिकेशन को हासिल कर पाएंगे, जो पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS के साथ है। इवन जो है हमारे साथ AWS इज ऑल्सो पार्टनर्ड विद अस, लाइक दे हैव ग्रांट अस देयर, उन्होंने हमें अपना सर्वर यूज करने का परमिशन दिया है 6 महीने तक। और दैट इज व्हाट वी हैव पार्टनर्ड विद Amazon एज वेल। तो Amazon के साथ हमारा पार्टनर है, एंड एज वेल एज सपोर्ट फाउंडेशन जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उसके तरफ से हम ये फ्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी दे रहे हैं। जो भी मैं बताऊंगा या फिर जो भी है, मैं एज ए फर्स्ट POC नहीं हूँ, लेकिन एज अ ट्रेनर आई विल बी गारंटिंग यू कि जो मैं बता दूंगा, या फिर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ओन प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। और डेवॉप्स जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवॉप्स एक ऐसा मार्केट है जो कभी डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए, नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बना लीजिए, नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन बना लीजिए, डेवॉप्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, डेवॉप्स एक ऐसा कल्चर है जहां पर आपको अपने एप्लीकेशंस को फाइनल प्रोडक्शन लाइन में और एंड यूजर जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आम यूजर्स हैं, उन तक ले जाने में डेवॉप्स कल्चर का यूज होता है। डेवॉप्स को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, जहां पर आप कोड भी लिख रहे हैं या आप कोड नहीं भी लिख रहे हैं तो वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोड लिख रहे हैं,
और उनके साथ आप कोलैबोरेट करके, उनके साथ बात करके, और आप सर्वर और डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, और आप मेक श्योर करते हैं, यानी कि आप ऐसे इंसान बनते हैं जो कि एप्लीकेशन को एंड यूजर तक पहुंचाने में और एंड यूजर तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो दैट इज समथिंग इन अ शॉर्ट, लाइक वी डोंट हैव मच टाइम, लेकिन हम लोग आखिरी में मैं आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर का शोकेस करूंगा कि लाइक हाउ आई एम गोइंग टू ट्रैक योर अटेंडेंस। और अटेंडेंस ट्रैक करने का हमारे यहाँ मैं जो भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम आपको सर्टिफिकेशन किस बेसिस पे देंगे, ये फ्री है, ऑब्वियसली इट इज फ्री, लेकिन आपको हमारे किसी क्राइटेरिया पे उतरना पड़ेगा, और उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद यू विल बी गेटिंग योर सर्टिफिकेशन। और ये सर्टिफिकेट जो है नेशन वाइड रिनाउड है, और नेशन वाइड इस सर्टिफिकेट को जो है वेरीफाई किया जा सकेगा और वेरीफाई किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड मनीषा, ओवर टू यू। Thank you so much, Abhigyan. So, as Abhigyan told, in today's rapidly evolving digital landscape, acquiring industry-relevant technical skill is crucial for career advancement. And we are happy that Project DevOps, which is an IT service management specializing in cloud computing, development operations, software development, and IT infrastructure management, have organized this training program. With the mission to bridge gap between academia and industry, in collaboration with Support Foundation, who is a non-profit organization dedicated to educational empowerment, skill development, and capacity building for underprivileged communities. Its mission is to bridge the gap between education and employment by, again, providing accessible, high-quality learning opportunities, just like this training program. The foundation also actively participates in National Apprenticeship Training Schemes, NATS, and National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, enabling students to gain practical experience through internship and apprenticeships in various industries. With that brief introduction, I would now like to introduce you to our highly renowned and esteemed guests whose presence today make this event even more special. So these industry leaders that I will be introducing now are experts that bring invaluable insights that will guide and inspire us all on our learning journey. With that, firstly, I would like to express my thanks and would like to introduce Professor Madhu Kumar, who is the in charge of ICT in BIT Mishra Patna campus. He is from the Department of Computer Science, and as an in charge of ICT, he has played a pivotal role in developing the curriculum frameworks and integrating the cutting-edge technology in education. His insights on IT infrastructure and digital learning strategies will surely be the highlight of our event. And we are very proud to say that our very own Abhigyan is associated with Professor Madhu Kumar from a very long time. And we are very happy to have Madhu sir with us today. He was my final year project's mentor as well. So yes. That's an honor as well. Next, we have with us is Professor Dr. Vijayesh Kumar, the former faculty member of Missouri State University, USA. With a deep understanding of international educational systems, cloud computing, and research methodologies, he brings a global perspective to our discussion today, and his experience in academia and IT sector will surely inspire our participants to think beyond boundaries. Along with Vijayesh sir, we also have with us Professor Dr. Arnava De, head of the department CSC Global, Gopal Narayan University, Bihar, a highly respected academician and researcher. As a head of computer science and engineering department at Gopal Narayan University, Bihar, he has been at the forefront of advancing technological education. His research contribution and mentorship have shaped the career of countless students in the field of software development and cloud computing. We are honored to have you with us today, sir.
We also have with us our esteemed guest, Satyam Mishra sir, a senior Workday consultant at HR Path, France. With an extensive background in HR technology and cloud-based systems, he has been instrumental in driving the digital transformation at workforce management solutions. His expertise in enterprise application and HR automation make him valuable resource for aspiring professionals looking to understand the intersection of technology and human resource management. Not the last, but we have with us Prashasna ma'am, a data system analyst at Roger Communications Canada. Her expertise in data management, cloud computing, and analytics has contributed to optimizing enterprise solutions. We look forward to her valuable insights on how data-driven technologies are shaping the future of IT industries. Ladies and gentlemen, let us have a huge round for our distinguished guests. And we are very happy that all of us could join with us today. With this brief introduction, I would like to now invite the President of Support Foundation, Rangish Kumar sir, to give the welcome address for our guests. Rangish sir. बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। जी। आज का दिन बहुत हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इतने ऑनरेबल लोग हैं जो हमारे गेस्ट के रूप में हम लोगों के बीच हैं, और मैं देख रहा हूं कि इतने कम समय में और हमारी टीम ने जो मेहनत किया है, अभी 109-110 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, जबकि सेशन शुरू नहीं हुआ है। तो इनॉग्रेशन सेशन में इतने लोग हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि आगाज हम लोगों का बहुत अच्छा है और आगे हम लोग इसको अच्छा कर पाएंगे। और मेरा उत्साह काफी बढ़ गया है कि प्रोफेसर मधुप सर, डॉक्टर विजयेश सर, सत्यम मिश्रा जी और अरुणाभ सर जैसे लोग हैं जो हम लोगों के बीच हैं। प्रसन्ना मैडम है और सोनाली जी ने भी अभी फोन करके बताया कि उनके पास कुछ इमरजेंसी आ गई थी, वो बीच में हो सकता है जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास अभी इतना अच्छा हमारे पास ये टीम है, तो मैं इन लोगों को कहूंगा आप गेस्ट नहीं है, हमारे एडवाइजर के रूप में पूरे प्रोग्राम के साथ आप लोगों को काम करना है। इतना हक हम लोगों का है और हम लोग अच्छा करेंगे। आप लोगों का अगर हम लोगों का साथ मिलता रहा तो हम लोग बहुत अच्छा इसको आगे लेके जाएंगे। ये हमारी जो एडवाइजर की टीम है, जिसमें एकेडमिशियन है, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और प्लेसमेंट के लोग भी हैं। तो हमारे पास पूरा पैकेज है। जो बच्चे हैं, बच्चों को हम लोगों ने अपने लाइफ में, विजय सर ने अपने लाइफ में, सत्यम जी ने अपने लाइफ में और बाकी लोगों ने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो सारा कुछ करके और पैकेज रूप में आपको देंगे कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वो आपको रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं और आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कुछ आप ही के बदौलत होना है। हम लोग तो खड़े हैं कि आपको ट्रेनिंग भी देंगे, सॉफ्ट स्किल देंगे, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, उसका भी सब कुछ, ये सारा एक्सपीरियंस एक साथ आपको मिलने वाला है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको जो दिख रहा है कि फ्री है, वो फ्री नहीं है आपके लिए। फ्री तो है ही है, लेकिन आपके लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल है जो पे करके भी आप नहीं हासिल कर सकते हैं। जैसे ईश्वर ने हम लोगों को धूप दिया है, तो हम लोगों को जो सनलाइट मिलती है, हम लोगों को एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो वो फ्री है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कितना है, उतना ही इम्पोर्टेंस आज का ये जो प्रोग्राम है वो मैं देख पा रहा हूँ। और ये जब इतने लोग आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरा काम बहुत कुछ हो गया है, और आप सब लोग अब आ गए हैं तो ये काम बहुत आगे जाएगा। आप सब लोगों से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, और सबको मैं हक के साथ ये कह सकता हूँ कि आप मेरे गेस्ट नहीं हैं, आपको एडवाइजर के रूप में काम करना है हम लोगों के साथ, जो भी टाइम मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी सोचा है कि आप ट्रेनिंग करेंगे, सॉफ्ट स्किल भी आपको मिलेगा, साथ में आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे उस पर हम लोगों को काम करना है। और अभी भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है नैट्स की और नेट्स की, जिसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। क्या होता है कि नए जो यूथ हैं उनको कोई काम नहीं देता है, तो भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपने कोर्सेज तो कर लिया, वो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? एक्सपीरियंस किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है, वो आपको काम करके अपने टैलेंट की बदौलत लेना पड़ता है। तो सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है एम्प्लॉयर को कि आप नए लोगों को रखेंगे 1 साल के लिए, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होंगे। 1 साल में ये बच्चे प्रूफ करके दिखाएंगे। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है
कि आप 1 साल में प्रूफ करके दिखाइए ऑर्गेनाइजेशन को कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में देख लेगी कि आप उस लायक है तो रखेगी, नहीं तो फिर आपको कहेगी कि नहीं आप जा सकते हैं। इस बीच में एम्प्लॉयर को वो मॉनिटरी भी दे रहे हैं बेनिफिट कि 5,000 रुपया वो उनको देंगे। मतलब स्टूडेंट को अगर जो अप्रेंटिसशिप में होंगे उनको 5,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा, बाकी उनको एम्प्लॉयर देंगे। तो ये हम नेट्स और नेट्स में भी हम लोग अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, आपको प्लेसमेंट का करेंगे। अभी सोनाली जी हम लोगों के साथ जो टीम में एडवाइजर के रूप में है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्लेसमेंट में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि सर अगर डिजर्विंग कैंडिडेट आपके होंगे तो निश्चित रूप से मैं अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो हम लोगों के लिए बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको आपको उसका फायदा उठाना है। अब इस बीच में जैसे विजय सर हैं, इन लोगों का है तो आज ये गेस्ट के रूप में हम लोगों को बताएंगे। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एज ए गेस्ट लेक्चर इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में आपके पास जब भी समय होता है आप मुझे बताएंगे, तो हम लोग आपके एक्सपीरियंस का लाभ इन लोगों को दिलाएंगे। बच्चों को कैसे इसका अपॉर्चुनिटी का वो लाभ उठा पाएंगे। तो ये सारे गेस्ट आज देखिए, कोई कनाडा से जुड़े हुए हैं, कोई यूएसए से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। मैंने सत्यम सर को देखा है, सत्यम सर कैसे स्ट्रगल करके बिहार से बेंगलोर गए हैं, बेंगलोर से फिर आ जाके फ्रांस में अपने आप को एस्टेब्लिश करके वहाँ के परमानेंट नागरिक के रूप में वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप भी सत्यम मिश्रा बन सकते हैं, आप भी विजय सर बन सकते हैं, आप भी मधुप सर बन सकते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है और आपको इन सब लोगों के एक्सपीरियंस का एक पैकेज आपको मिलने वाला है। तो आपको कभी घबराना नहीं है कि मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ या दिल्ली में बैठा हुआ छोटे से जगह में हूँ। जिस धरती पे आप जन्मे हैं वो स्वामी विवेकानंद की धरती है, और वो जाके उस समय जबकि कुछ नहीं था, उन्होंने अमेरिका में जाके अपनी बात रखी और आज भी लोग उसको ऑनर करते हैं। तो आप सभी बच्चों से मैं करूंगा कि आप प्रोफेशनल लाइफ में रहिए, लेकिन 2 कैरेक्टर को आप अपने लाइफ में जरूर पढ़िए, एक स्वामी विवेकानंद को और एक लॉर्ड कृष्णा को। कृष्णा ने जो कर्मा के ऊपर कहा है कि आपके हाथ में क्या है, कर्म है, और कर्म करके इस धरती पे आए हैं तो आपको कर्म करना है, कर्म करेंगे तो प्रतिफल उसका मिलना है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि आप उठो जगो और तब तक नहीं रुको जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इन दोनों को जरूर पढ़िए, आपके लाइफ में चेंज पहले दिन से दिखना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा था कि अपने माथे को वज्र बना लो। आपके ऊपर आप जब क्लासेस में रहते हैं, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, कोई आपको ओवर एस्टिमेट करता है, तो ना आपको ओवर एस्टिमेट होना है ना अंडर एस्टिमेट होना है कि मैं कुछ नहीं हूँ या मैं बहुत कुछ हूँ। आपको बीच का रास्ता पकड़ना है, अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करते हुए तब तक रुकिए, माथे को वज्र बना लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, अपने माथे को वज्र बनाओ और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाओ, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य मिलेगा। और हम सब लोग हैं यहाँ, तो मैं चूंकि समय की बाध्यता है, बहुत से लोग हैं जो हम लोगों के एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको सुनने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। तो मैं अब आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए बच्चों को कि भाई आप लोगों को भी अपना सबसे बड़ा काम आप लोगों का है। हम सब बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन में भी आपको सब कुछ मिला है, कहाँ गैप रह गया है ये आप मंथन करें और पूरा का पूरा टाइम देते हुए। ये नहीं कि फ्री का कोर्स है, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन किया अभी नहीं किया, तो एक भी क्लास अगर मिस करेंगे तो आप अपने लाइफ को मिस करेंगे। लाइफ में अपने जो करियर में जो आगे बढ़ना है उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे प्रॉपर सेशन को ज्वाइन करिए, जो इसका टाइम टू टाइम जो गेस्ट है उनको फॉलो करिए, और जो हमारे पास जो भी आपका बीच में असेसमेंट हो रहा है उस असेसमेंट को भी अपना प्रॉपर करते जाइए। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं सब लोग जॉब कर लेंगे तो हमको लगेगा आत्मसंतुष्टि मिलेगी। यही हमारा क्या कहते हैं, पूरा हमारा अचीवमेंट यही रहेगा। तो मैं आगे मनीषा जी को देता हूँ। मनीषा जी, बाकी जो हमारे गेस्ट हैं काफी देर से ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन लोगों को हम लोग सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, उनके एडवाइस को सुनेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. We would now like to move to our guests, and with that, I would like to request Professor Dr. Anunava De, Head of the Department CSC, Gopal Narayan University, Bihar, to honor us with his speech.
Good evening, everyone. Now, this is really a very good opportunity for the students who have registered for this course, which is free. Nothing is free, but since you are giving it free, you should also see to that that attendance is very much mandatory to them. Otherwise, they will come and go. The students are like that only. So that is a very important thing. And yes, it is a very good initiative by the organizers that they are offering a free course. Now, my thing is, as a academician, I will just tell about why we should do this course. This is the thing which I like to address, because you are offering Python, then cloud computing, and your DevOps. Now, these three are very much nowadays it is very much in demand. Actually, for AI, data science, and machine learning, these things we have also studied. We have also did research on this 10 years back. So that time it was only neural network or uh, algorithms based on that. The name AI is derived from those neural network and NLP, those things. Now, data science, machine learning, artificial intelligence, all this is now basically it is now the time where we are working on this. Everything is driven by AI now. Now, for AI, what we need to implement AI, we need Python. So Python nowadays, in CBSE board also it is introduced in 10th, 9th and 10th. So everyone should study Python for implementing the projects in Python. Then Raspberry Pi. So in here in GNSU, we are doing projects on Raspberry Pi. So that Raspberry Pi is also implemented using your Python. So everyone should go for this Python. Python again is object-oriented language. It is your uh, it is a language of internet again. So it is a very upcoming thing that we should go for Python and cloud computing. Now, what is cloud? Now, cloud is basically you are storing each of your like your hardware, software, everything is cloud. You just pay something and you can use all the uh, you can get the benefits of the languages, the hardware without buying the full software. You can just on rent you can use the software. So that is the biggest advantage of using cloud computing. Now, for cloud computing, it helps in scalability of the product. It is cost saving. You can cut the cost by using on rental basis. What you do is you cut the cost of buying a full product. So those are the advantage of cloud computing. And what about DevOps? Now, this is a new term, DevOps. Now, DevOps is basically in software, when you are working in software, you will have different stages like from feasibility study, requirement analysis, then coding, design, testing, maintenance. So there are a lot of steps. So for that, what you need DevOps. DevOps gives a full idea. It is not just coding. We think that software is only coding. No, it is not coding alone. So many things you just combine together to get a good software. It is only coding does not help. It has to be good design also. Your design also should be good. Your database has to be good. You should have a good database design. Then you should have a good testing module. Everything has to be good. So your documentation also matters. So if your software is good, your documentation has to be good. So all these things together is DevOps. So DevOps is basically a total thing. Means it is in total how you view a software, basically how you are viewing a software. So it is a wholesome approach to software development, DevOps. So DevOps is a new thing. Now in DevOps, if you do implement the main thing of DevOps, then what happens? Your quality of software improves. So these are the very upcoming languages that you should know.
And since you are studying BTech, BCA, MCA or something like that, so your mindset should be that you should go and work in a software field. For software field, you should always go for the current languages, upcoming languages, and also yes, C, Java, those things. So you should know. Without knowing C, without knowing Java, you cannot understand the other programs. So in fact, Python is very simple compared to C and Java. Python is simple, very much simple. So it is not that, but the thing is, many things can be done in Python which cannot be done in C. So for that, we should study Python. So I recommend this course, and I tell the students, I will take tell the students to go for this course, and after doing this course, they should also go for the internships that are there. So in Internshala, our many students have this time they have got through Internshala 15,000, 20,000 rupees, 3 month course, 3 months they have not course, internship they have got, including AICT also. One guy has got AICT funded internship from MCA of our batch. So like this, like you should go on developing yourself. Otherwise, like it would be very difficult for you. Since you have chosen this field, you should go for studying these current courses. Thank you from my side. Thank you so much, sir. We are very, very happy and honored to have you on the panel and to hear from you. And we hope we could arrange a guest lecture for you from you in next few months. Next, I would like to invite Vijesh, sir, to honor us with his presence. Hi, Hello, sir. good evening, all. Good evening, sir. It's my proud privilege to be here among you all, and I wish our students will stay here from this, and I'm sure they will do well. To the students, I would like to say that, as Rangish ji was saying earlier, that Lord Krishna, what Lord Krishna said, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अगर आप कर्म करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो पांचों तो अब आज के जमाने में संभव नहीं है, बट एकाग्रचित होकर आप अपना गोल, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, गोल सेट करें, एंड यू शुड चेस दैट गोल। बीइंग एन स्टूडेंट, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पढ़ाई। हम सभी अपने कर्मों पे अगर ध्यान दें, और कर्म ही पूजा है, इसीलिए कहा गया है, अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरा काम पढ़ाना है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का काम पढ़ना है, किसान है, उसका काम खेती करना है। तो हम सभी अगर मनोयोग से एकाग्रचित होकर और एक लक्ष्य को साधें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता भी हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों से कि एकाग्रचित होकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन से उसमें लगें, और निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for your enlightening words. We would now like to move on, and I would now like to invite Satyam sir for his valuable insights. Sir, you're on mute.
Hello, can you hear me now? Yes, yes, we can hear you now. Okay, so hello everyone. 2 दिन पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में सुना और काफी अच्छा लगा इसके बारे में सुन के। रीजन ये था कि जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग करा था तो जैसा अरुणाबाद सर ने बोला कि C++ and Java at max, this is what we learned from the college. But when we started the career, this is not what everybody was looking for. They were looking for something else, like a middleware, like a DevOps or cloud computing or something else, which is maybe a foundation is still the C, but it could have been nice to know something else like a Python or anything else which could help us to get some more exposure in the computer. Let's say I'm coming from the computer science background, so something related to the computer job, it's more if you know something extra. This course that we are going to have is going to be free, so big advantage for everybody. And I mean, I want to say that it's an opportunity for everybody who is going to take this course, that you will go into the industry knowing something more than everybody else, which is coming fresh from the graduate course. So I would say take this opportunity. I'm not as experienced in talking as the other guests that we have, but I can help you on real-time basis whenever it's needed. Reach to me. I will try to make myself more available for the real life. Maybe we'll have some choices to make. I can help you with that or something else. It was difficult in the beginning, but I think this course is going to help you all. Okay, so that's it from my side. I'm looking forward, Rangis, to keep joining the sessions to help the new students moving forward. Some days before, Satyam sir, I was explaining one guy like what the workday is, like a software as a service. So Yes. unfortunately, That's fortunately he is with us, Sabrant, and I was explaining him like how the workday works. So इसके बाद जो है 2 घंटे बाद ही मेरी आपसे बात हुई एंड मैंने बोला कि ओके तुम्हें इस वर्कडे के बारे में जानना था एंड वी हैव अ पर्सन लाइक जो तुम्हें अच्छे से वर्कडे को समझा सकता है एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट यू सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म if At the needed, I same can. instant of time, sir. No worry. If needed, sometime I will join and explain it to you guys how it works. I mean, I didn't prepare myself in the beginning for this, but with time I somehow landed up into the workday, so I know the system now. I can explain. Maybe it can help to start somebody with the career in workday. But it's very interesting and let's say not very complicated. And as Arunava sir said that. Good software is not just writing a coding. You don't have to be a good coder to be part of the team. You could be a tester. You could be let's say, somebody to design like an architect. You could be someone who does the testing, for example, like creating the test cases, explaining it to the team or let's say gathering the requirements from everywhere that what all needs to be done and so on. So you could be good at anything. You just have to pick it, understand where you are good at, and you can proceed in your career with that knowledge. So I will be happy, Jan, to join sometime to explain it more. Sure. It could be more than just workday that I could explain. Sure. It will be more beneficial to all even for me as well. So learning is a consistent thing, and I think it will be more beneficial for all of us. I think. Yeah. Sure. Thanks. Thank you so much, sir. And we would love to have a session with you in our upcoming training program. Next, we also have with us Prashasna ma'am. Ma'am, we are honored to have you here and we would love to hear from you. Thank you so much for having me here. मैंने सत्यम सर ने जैसे बोला, मैंने 2-3 दिन पहले ही इस प्रोग्राम के बारे में सुना एंड मैं अभिज्ञान को I know अभिज्ञान very well and I know the initiatives he's taken
in the past to spread his knowledge. He's a very knowledgeable person. And it is amazing कि ये भी एक initiative है. And इट्स वेरी ट्रू कि हम लोग कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं वो रियल वर्ल्ड के लिए सफिशिएंट नहीं है. तो मैं लाइक as for me, I graduated as a mechanical engineer, and when I went out into the world, मुझे बहुत जल्दी business intelligence और data systems के अंदर डाल दिया गया. And लाइक मेरा पहला जॉब ही उस फील्ड में था, बिजनेस इंटेलिजेंस के फील्ड में. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई फाउंड वाज जो भी मैंने कॉलेज में पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं था फॉर द रियल वर्ल्ड, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में बहुत अलग प्रॉब्लम से डील करते हो, बिजनेस स्टेक होल्डर से डील करते हो. डेटा इज वेरी मैग्नानिमस, मतलब टेराबाइट्स टेराबाइट्स का डेटा आता है, हर मिनट हर सेकंड डेटा कलेक्ट होता रहता है, चाहे कोई से भी फील्ड में हो. तो जो भी मैंने पढ़ा था इट वाज नॉट इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अलग ही पढ़ाई करी थी, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एंड मुझे बहुत पैसे देने पड़े पहली बात तो. तो वो एक चीज Even I थी. was also there with you, I think. यस. तो मुझे बहुत पैसे देने पड़े. एंड इट वाज लाइक ठीक है चलो पैसे दे दिए, बट इवन देन आप रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं होते हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड के लिए तैयार आपको कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कोर्स नहीं कर सकता, आपको खुद होना पड़ता है. It is your practice, it is your dedication towards anything which makes you ready. So पहली चीज, it is a very good thing that आपको इतने पैसे इसमें डालने नहीं पड़ रहे, it is free of cost. That is one thing. और दूसरी चीज ये है कि आपका डेडिकेशन, आप कितना अपने आप को इस चीज में डालते हो. तो आप चाहे जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो डेवऑप्स हो. मैं पर्सनली आई एम फ्रॉम अ डेटा फील्ड. आई वर्क विद डेटा सिस्टम्स. आई क्रिएट डेटा सिस्टम्स फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन कनाडा. तो आई वर्क विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, फाइनेंशियल डेटा, सप्लाई चेन डेटा. तो इट इज योर डेडिकेशन कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, एंड आप ये फ्री एक कोर्स को आप कैसे आगे ले रहे हो. So because you're going to step out into a very dynamic world which is governed by AI, and जो और competitive हो गया है AI, Gen AI, LLM सारी चीजों से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क भी डालिए इस कोर्स में, ताकि इट अल्टीमेटली pushes you forward. Baki, I am always there, like from my end, whatever help you guys need about it, I am ready to provide. I am not very much ahead in my field क्योंकि मैं हर रोज भी सीख रही हूँ. It's a very growing field, a very dynamic field जिसमें मैं काम करती हूँ. But yes, like if I am learning, I will definitely impart whatever I'm learning on the job, on the go, to anybody who is interested in this field. Thank you for having me. It is a very good initiative, and all the very best. थैंक्स प्रशंसा. पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैंने रात में प्रशंसा का कंप्लेन भी आया था कि विज्ञान तुमने मुझे जो है मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है. लेकिन मैंने बोला कि नहीं, वी आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल. तुम अपने सारे चीजों को शेयर कर सकती हो हमारे साथ, हमारे साथ एक्सपीरियंस. तो हमने और प्रशंसा ने, मैंने और प्रशंसा ने साथ में बहुत पहले कोचिंग भी किया है साथ में. आई थिंक 5 years लॉन्ग बैक, like when she was saying कि प्रैक्टिकलिटी और जो भी चीजें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस जो है हेवी चार्ज करती हैं, like we have paid something amount like 70K or 80K, I think 80K, 80K. और 6 महीने के 80K जो है वो चीज लेने के बाद भी उन लोगों ने जॉब की गारंटी नहीं दी थी. And it was something like at that time before 5 years back they were training us over the artificial intelligence and data science. तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आज ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग है. तो ये ओपनिंग नहीं है, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है. सो आई थिंक
we are having a great opportunity at all on a single platform. Thank you so much, Gyan, and thank you so much, Prashansa ma'am. It is very true, जैसा कि मैम ने बोला कि this program is free, but it does not mean that it has cost us nothing. In fact, a great deal of effort, resources, and dedication has gone into making this possible. But we have seen the passion in students, eagerness to learn, and hunger for the opportunities, and we believe that कि जो financial constraints हैं, it should never stand in a way of talent and ambition. And this is why we have made this decision to offer this program at no cost, ensuring that quality education is accessible to all. This program is more than just a training, it is a commitment to nurturing talent and driving meaningful change. To all our participants, I also encourage you to make most of this opportunity and engage actively and absorb as much as you can. We also have Madhup sir with us, but I think he's facing a network issue. As soon as he joins, we will listen from him too. But with that, I would request Manoj sir to take the stage and to give the thank you speech for our guests, so that we can start with the session of telling the students how we are going to move ahead with our sessions. Manoj sir. I think he left like. Manoj sir is here in the meeting. Is he in the meeting? Yes. I think he's muted. Yes. Manoj sir, आप mute पे हैं. Okay. Yes sir. Yes sir. अभी आप visible हैं. सर नीचे म्यूट का बटन हटा दीजिए. हेलो सर अभी ऑडिबल हैं आप. मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है. सबसे पहले तो मैं जो हमारे गेस्ट हैं उन सबका आभार व्यक्त करते हैं कि इतना समय इस पुनीत कार्य के लिए वो लोग दिए हैं. रंगीश जी का आभार व्यक्त करते हैं, डॉक्टर विजेश कुमार, सारे लोगों का इंक्लूडिंग आपके टीम को और सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं. ये शुरुआत आज से इसकी हुई है. हम चाहते हैं कि इस संगठन के द्वारा जारी किया गया जो सर्टिफिकेट होगा वो इतना रोशन नाम करेगा, इतना आगे जाएगा कि इसका बहुत नाम होगा और लोगों को लगेगा कि वाकई में कोई ऐसा भी संस्था है जो बिल्कुल जो उसका अपना कार्य है, जिस कार्य के लिए वो संस्था बनी है उस रास्ते पर जाकर वो काम करती है. और हमारा भी संगठन है, वो भी इसमें सहयोग किया है, आगे भी करता रहेगा. और स्पेशली हम यही चाहेंगे कि ये 3 महीने का जो कोर्स है उसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से चलाइए. और जो बहुत ऐसा बच्चा है हमारा, बल्कि इस बिहार, झारखंड और यूपी का, कि जानने को सब बात जानता है लेकिन इंग्लिश में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बेचारा. तो एक ये भाषाई कमजोरी है. इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल ही उसको हिंदी में, जो लड़का हिंदी में समझना चाहे बार बार उसको समझाइए, वो बिल्कुल समझ जाएगा. क्योंकि टैलेंट उसमें है, सिर्फ वही बात उसको दिमाग में घुसाने की बात है, जो आप लोग इसको अच्छे तरह से कीजिए. और हमसे जो भी हो सकेगा, हमसे, हमारे संगठन से आपके टीम को
हम लोग मदद करते रहेंगे। हम एक बार फिर से सारे टीम को, सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारे गेस्ट हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, और आपके टेक्निकल टीम को प्लस रंगीश जी के सोसाइटी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच। आपके और रंगीश सर की वजह से ही हम ये आज पॉसिबल कर पाए हैं, एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है वो आप दोनों की वजह से ही है। As we are near the conclusion of our inaugural session, I would like to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed guests, organizers, and participants for making this event a grand success and a grand starting for the training program that we will have today. We will start from today. With that, I would like to give the stage to Abhigyan sir for informing how exactly we are going ahead with this training, what all are the important aspects, how the attendance will be taken, how your certification will be decided, and what all we will be learning. I request all the students to pay very, very high attention to whatever we will discuss today, as it will clear most of your queries, whatever you will have. And after that, even if still you have any queries, we will always be there to clear them out. Abhigyan sir. Thanks Manisha. Let's start. तो सबसे पहले जो आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट को देखा है, जिस तरीके से देखा है वो उस तरीके से वेबसाइट है नहीं, ठीक है। ये जो पोर्टल है इसको कहते हैं हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है अपने लर्निंग्स को मैनेज कर सकता है। स्टूडेंट कैन ट्रैक, स्टूडेंट जो है अपने अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि उन लोगों ने 3 महीने में क्या क्या किया है। यानी कि 3 महीने, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई कोर्स हो सकता है इस पोर्टल पे या हमारे सिस्टम के द्वारा किसी दूसरे टीचर के द्वारा जो है वो चीज़ किसी 2 महीने या 6 महीने का चल रहा हो। तो हर एक इंडिविजुअल वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएगा। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। बिल्कुल ये बात सही है कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट के लिए 2 क्राइटेरिया है कि आपको डेली अटेंडेंस मार्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्लास में आना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है, कभी तबीयत खराब हो गया या फिर किसी दिन पढ़ने का हो सकता है मन भी ना हो कि अरे ठीक है। तो हमने इस सर्टिफिकेशन के लिए 80% पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इसे 80% रखेंगे, लेकिन ये किसी कॉलेज में भी 80% नहीं रहता है। तो हम लोगों ने जनरलाइज किया, ये चीज़ महसूस किया, तो हमने डिसाइड किया कि 75% या फिर 70%। तो हमने ये डिसाइड किया कि 70% हम आपके अटेंडेंस को ट्रैक करेंगे, यानी कि जितने दिन क्लासेस हुए हैं या जितने दिन भी क्लासेस होंगे, रिगार्डलेस ऑफ दोज एक्स्ट्रा सेशंस, हम एक्स्ट्रा सेशंस जिस तरीके से आज हमने कराया है वैसे ही हम हर एक फील्ड के टीचर्स, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेके आके, यानी कि जो लोग ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं उनके अलावा जो क्लासेस होंगी उनके 70% आपको क्लासेस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और 30% के लिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर 30% में आप एब्सेंट हैं तो वो क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, वो क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको जो है अटेंडेंस मार्क करना पड़ेगा। 70% तो अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो गूगल मीट पे हम लोग क्लासेस लेंगे, ये तो हमें पता है क्योंकि गूगल जो है हमारा एमिनेंट पार्टनर है। इवन जो है AWS अमेजॉन, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ही इज ऑल्सो दे आर ऑल्सो आवर ग्रांट पार्टनर। तो जब हम बताएंगे आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग, और स्पेशली आई विल टीच यू ऑन द AWS एज आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ओवर इट, दैट्स व्हाई। तो AWS जब मैं बताऊंगा तो उस सब चीज़ों को जो है, सारे चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर क्लास में आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा जाकर देख सकते हैं। और वो कहाँ अवेलेबल होगा? तो मैं एक यूज़र की तरह, नॉर्मल यूज़र, आप जैसे स्टूडेंट की तरह मैं अभी अपने अकाउंट में लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका डिवाइस, ये आपका डिटेल है।
जैसे कि मैं आज सुबह से कह रहा था कि आप लोगों को अपना डिटेल भरना है यहाँ पर, तो ये आपका यूजर डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अपने आप प्रोफाइल को लॉग इन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, और आप अपने यूजर प्रोफाइल को चेक भी कर सकते हैं। मैंने तो अपना नहीं डाला है, मैंने तो डायरेक्टली अपना एक टेम्पोररी अकाउंट बनाया था। इसके बाद, और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लासेस जो है ट्राई करना है कि फोन से नहीं लैपटॉप से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस जो है जब लाइव कराऊंगा तो मैं पाइथन या फिर किसी कोडिंग वाले चीजों को बताऊंगा, तो वो मैं लाइव भी बताऊंगा। और उस लाइव को बताने के लिए आपके पास उस लाइव को बताने के लिए आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप होना जरूरी है। आई थिंक अब तो सबके पास होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बीसीए या बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो उनके पास होगा। और जिनके पास नहीं है वो एटलीस्ट ऐसा करें कि एटलीस्ट टैबलेट का व्यवस्था कर लें, जो टैब होता है नॉर्मल, जो बड़े स्क्रीन का टैब होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कर लें। और जिनके पास वो भी नहीं है, दे कैन गो अहेड विद द फोन एज वेल। उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, मैं ये बोलूंगा कि वीडियोस जो है बड़े स्क्रीन पे देखने पे ज्यादा समझ में आती है, छोटे स्क्रीन पे कम, तो उनको वीडियो को स्टॉप कर करके देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स प्लीज आप लोग बनाइएगा जरूर, क्योंकि मैं नोट्स आप लोगों को देने वाला हूँ। ये यहाँ पर जो है ये डेवऑप्स के कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। सी, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका जो है डेली पढ़ाने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स अपलोड कर दूंगा, यानी कि हमारे सिस्टम से, ठीक है। आप यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। डेली जब आप लॉग इन करेंगे अपने सिस्टम में, तो आपको बार बार गूगल मीट का लिंक लेने का जरूरत नहीं है। आप अपने क्लास के टाइम पे लॉग इन करेंगे और इस गूगल मीट के लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस गूगल मीट के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मैं आपको एंट्री दूंगा। यहाँ पर आपका जो है वीडियो लेक्चर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आएंगे जो प्रीवियस डे के होंगे, और सिर्फ 3 दिन पुराने ही वीडियो लेक्चर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि 5 दिन से ज्यादा या 4 दिन से ज्यादा कोई एब्सेंट नहीं रहेगा क्लास में। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पाइथन को बताने वाला हूँ, पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन मैं उसका डेफिनेशन, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे चलाना है, इवन जो पहला बेसिक प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड, आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब बात आता है सबसे इस पॉइंट का मेजर जो हमारा पार्ट है कि आप अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है अटेंडेंस लगाने का। मैं अपने एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तैयार रहें। अब अटेंडेंस लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक बबल दिख रहा है 0/5। जब आप अटेंडेंस लगाने जाएंगे कभी भी, जब आप अपने पोर्टल को या तो फोन से खोलेंगे या फिर आप अपने लैपटॉप से खोलेंगे, तो जब आप अटेंडेंस लगाने जाएंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ थिंग, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर डेली क्विज। तो डेली जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटे 1.25 घंटे में, उस बीच में मैं आपको 15 सेकेंड का छोटा सा मिनी क्विज दूंगा, जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, ठीक है। आंसर जरूरी नहीं है कि वो गलत है या सही है, ठीक है। I think someone is saying like screen is not visible. It is visible. It's visible. Yes. Okay, sorry. They break my. Okay. तो अब मैं अपने एडमिन को बोलता हूँ कि अब आप अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे, वो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एडमिन आप स्टार्ट कीजिए 5 क्वेश्चंस को सेंड करना। जब मैं, हमारे पास एक एडमिन है जिसके थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब मैं बोलूंगा कि क्वेश्चंस आने चाहिए, वहां से ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आने वाला है। आई थिंक अभिषेक इज ऑनलाइन, Sabrant. Abhishek is online. He is asking the question. Wait a minute, sir. ओके, तो लेट्स वेट। अभी समझिए कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अब जो है क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं, एंड लेट्स सी। और ये जब जब आप क्वेश्चंस को, आपको डेली सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप उसके आंसर सही दीजिए या गलत दीजिए, लेकिन ये पोर्टल आपका चलते रहना चाहिए। यानी कि आप वीडियो देखेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ेंगे वीडियो मीट पे, गूगल मीट पे, और जब मैं क्वेश्चन दूंगा उतने देर के लिए मैं पॉज करूंगा अपने आप को, ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम Abhishek.
तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में हर एक प्रोफेसर, हर एक टीचर ने कहा था कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक फाइनल असेसमेंट लेंगे आपका, जो मैं 3 महीने में पढ़ाऊंगा, उसका एक नहीं, ये कंप्लीशन ऑफ, जब जब आपका ये 0/5 5/5 हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपसे 5 से 5 क्वेश्चन पूछ लूंगा 10 मिनट में, वो मैं पर्टिकुलर अंतराल पे पूछता जाऊंगा, इंटरवल पे पूछता जाऊंगा। जैसे 5 से 5 क्वेश्चन होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं पौने घंटा में ही आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। 1 घंटे तो आपको प्लीज देना पड़ेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, नथिंग, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी। सो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और दैट्स व्हाट आई थिंक। इन होल क्लास 5 क्वेश्चंस तो आपको बताने पड़ेंगे ना, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। when we will have to attend the quiz after class or during the session। अब मैंने मान के चलिए, आपको मैंने बताया कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर दे दिया, सब कुछ मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, जो एडमिन के तरफ से जो है मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन आने वाला है ना। क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइमिंग आपको मेल पे नहीं मिला? 7 to 8। सी यहाँ पर आ गया, हु डेवलप यहाँ पर अब आ गया है हमारे पास। यह पर अगर आप इस जितने भी, और इवन टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। इतना कम समय नहीं मिलेगा हमें, हमारे पास कम टाइम है, इसीलिए हम इस प्रोग्रेस को स्पीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1/5 आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। इस एडमिन पैनल में और भी बहुत सारा कुछ है, आपके यूजर डैशबोर्ड में। आप कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको कल आप हर दिन कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिए हैं वो भी आपको दिखेगा, आप हर दिन कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं वो भी दिखेगा, आपका अटेंडेंस भी दिखेगा। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा बैकएंड एडमिन से कि वो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पोस्ट करें। सी लाइक मैंने जैसे बताया कि पाइथन को किसने बनाया है, तो वहां पर ऑप्शन आ रहा था व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, लाइक सी। जैसे मैंने किया यहाँ पर ये हो गया। अब ये हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही 5 होगा आप अटेंडेंस को मार्क कर पाएंगे। Can you paste the quiz fast as you can, please, Abhishek? Hello, Gyanu sir. Hello. Hello. Wait, Dharmendra. I am explaining something. Okay, sir. Sorry. So अब ये 3 क्वेश्चन हो गया है। प्लीज एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये थोड़ा सा स्लो हो गया है आज, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज वेरी फास्ट गाय फ्रॉम आवर एंड, सॉरी। ये क्योंकि हम लोग तुरंत तुरंत कर रहे हैं, तो ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, और हम लोग वहां से ट्रिगर करेंगे, और आपके पोर्टल पे, ये आपका यूजर पोर्टल है, यानी कि मैं एज ए स्टूडेंट आपके सामने हूँ, और मैं क्लास कर रहा हूँ गूगल मीट पे, और जब मैं आपको बोलूंगा कि अब आपके पास क्वेश्चन जाएगा, इसका आंसर दीजिए, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो पूरे 1.25 घंटे में मैं 1.25 घंटे का पढ़ाई इस तरीके से रखूंगा। आप बीच में जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप वो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो है 15 मिनट आप लोगों को दूंगा, और भी अलग से डाउट क्लियर करने के लिए। किसी को पूछना होगा दे कैन आस्क, नहीं पूछना होगा वो 1 घंटे के बाद सेशन को छोड़ सकेंगे। तो सेशन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। 15 मिनट मैं आप लोगों को अपने एंड से एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें। तो क्विज जो है क्लासेस के साथ शुरू होंगी जिस दिन से, यानी कि कल से हम लोग इनॉग्रेट सेशन आज था, और कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी नॉर्मल। और कल से मैं जो बेसिक चीजें हैं मैं कल से बताता चलूंगा, और एक दिन के जो मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा वो मैं आज ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इन द सेंस कि मैं कल क्या बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि कोचिंग में, नॉर्मल कोचिंग में जब हम लोग 9th 10th में, तो
होते थे तो हमें बताया जाता था। वी विल सी लाइक हम लोग वीकेंड में ऑफ रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर 5 हुआ, सी अटेंडेंस आपका मार्क हो गया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में, मुझे नहीं लगता है कि नॉमिनल छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसको आपको आंसर करने में मैं टाइम दूंगा आपको, ऐसा नहीं है 1 मिनट का या 40 सेकंड का या 50 को, हम सबके आंसर्स देंगे, प्लीज थोड़ा सा बियर कर लीजिए। मैं इसके बाद सबका 1 to 1 आंसर भी दूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब अटेंडेंस मार्क हो गया तो आप लीव कर सकते हैं। आपके नोट्स मैं यहाँ पर जैसे ही जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उसी दिन मैं आपके नोट्स को उससे क्लास के पढ़ाने से पहले ही अपलोड कर दूंगा, यानी कि यू विल बी एबल टू सी द नोट्स, ओके। इसके बाद आप लॉग इन किए हुए लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम ये है कि अब आपको सर्टिफिकेट, ये तो आप 3 महीने क्लास किए, अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो हम लोग 50 या अभी आगे अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, 50 या 60 नंबर का हम एक सर्टिफिकेट का एग्जाम लेंगे, जिसमें आप लोगों को, वो फ्री है, उसका 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। हालांकि ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं अगर आप इंस्टाग्राम या फिर बाद में देख सकते हैं, तो मैं प्योरली कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये हम लोग का पब्लिक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली किसी ब्रांड का। तो बहुत सारे ब्रांड जो है पर्टिकुलर नॉर्मल डेवॉप्स का, नॉर्मल कोई भी वो लोग प्लेसमेंट या फिर किसी भी चीज का गाइडेंस बिना दिए वो 20 to 25,000 मार्केट में चार्ज कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत के बदौलत, इन द सेंस मेहनत के बदौलत कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रहना है इस क्लास में, और आपको इस क्लास को देखते रहना है, सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और 60 में से आपको 60 नंबर में से यू विल हैव टू गो हेड एंड स्कोर 50%, यानी कि अगर 60 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 30%। और जिस स्टूडेंट का जो है अटेंडेंस अच्छा होगा, यानी कि 70% से ऊपर होगा, यानी कि 70% तक तो अटेंडेंस आपको रखना है। हम एक्सेप्शनल केसेस में किसी स्टूडेंट का हम कुछ केसेस एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 65% से नीचे किसी भी केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 65% इज वेरी लो, है ना। तो 65% से लेके 70% के केस में जिनका अटेंडेंस होगा उसके एक्सेप्शनल केसेस को हम एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे। और एग्जाम ऑनलाइन होगा, जिस तरीके से ये देखो यहाँ पर जिस तरीके से ये पोर्टल था ना, तो हमारे पास वो पोर्टल भी अवेलेबल है। इन द सेंस ये पोर्टल जैसे ही आप 3 महीने का क्लास कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने लगेगा एग्जाम और या फिर असेसमेंट को देने का। जैसे ही आप असेसमेंट में पास होंगे आपका अटेंडेंस ऑलरेडी फीडेड रहेगा, वो अटेंडेंस हमारा सॉफ्टवेयर उस अटेंडेंस का स्कोर और आपके स्कोर को कंपेयर करेगा, कैलकुलेट करेगा, और टोटल आपको 60, हम 10% आपको जो है ऐड करके आपके अटेंडेंस पर देंगे, यानी कि 50% आपको जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। मतलब इसके लिए या तो क्या बोलते हैं 50% इन द सेंस कि आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा इस असेसमेंट में, ठीक है। और 50% में हम आपको 10% रिबेट देंगे आपके अटेंडेंस के लिए, अगर आप अपना अटेंडेंस 70% से ज्यादा रखते हैं तो। और ये जो टेस्ट होगा ये नॉर्मल टेस्ट नहीं होगा, इन द सेंस कि आपका पूरा कंप्यूटर, जिस तरीके से कैमरा आपका ऑन है, आपको अपने कैमरा को ऑन रखना पड़ेगा, आपके अपने माइक को ऑन रखना पड़ेगा, और इसके बाद आप ये टेस्ट दे पाएंगे। तो इसको हम लोग, इस टेस्ट को कहते हैं प्रॉक्टर टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को मॉनिटर किया जा रहा होगा। एंड जो लोग बोल रहे थे एआई और सारे मॉडल्स को, और ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो दैट्स ऑल, ये मैंने केस बता दिया है। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं एंड वी कैन गो हेड राइट नाउ।